Foreign travelers, salvation seekers, academics and tourists have all tried to understand the city of Kashi for thousands of years. Banaras and its ghats are no stranger to attention. The latest comes from the modern media trying to track every aspect of this high-profile Varanasi Lok Sabha constituency. This week, the national and the international media camped in Varanasi to follow Arvind Kejriwal and Narendra Modi as they filed their nomination papers. Modi's cavalcade, especially as it made its way to the district court, generated images that have dominated election news, bringing the spotlight to almost every corner of the city, its lanes, its landmarks, its ghats. Beyond the headlines lies the story of the great Ganga itself and the many communities that live by its banks and are dependent on its waters for their livelihood. We look at how during each elections they become critical vote banks wooed by each political party. The Malla or boatman in silhouette, an image that becomes synonymous with life on the Ganga. The Mallas are part of the larger Nishad community that includes 16 other subcastes, prominently the Kewards, Binds, Lodhs, Gaud. These communities live along the river bank, their vote critical in constituencies of eastern Uttar Pradesh. In Banaras itself, 1,64,000 voters are from the Nishad community. The reason why, in their construct of Banarsiyat, the BJP chose a boatman, Ramcharitra Nishad, along with a weaver and a singer for Modi's nomination process. In a lane going up from the Sashwamedh Ghat, the one-room office of the Ma Ganga Nishad Raj Samiti. Its aims articulated by its young president, who says his main aim is to unite the Nishads socially and politically. इसमें निषाद है, बिंद है, मछुआरा है, सहानी है, केवट है, मल्ला है, जो कि लोधी हैं, धीवर हैं, नागर हैं, इसी तरह हम लोग 17 उपजातियाँ हैं और हम लोग की जाति के लिए कोई भी पार्टी और कोई भी समाज सेवी कभी सोचता नहीं है। जिनको भी जहाँ झंडा उठवाना रहता है, भीड़ दिखाना होता है, सब लोग खाली लुभाने के लिए ले जाते हैं, लेकिन प्रशासन और जब शासन इनका शोषण करता है तो कोई इनका मदद करने के लिए तैयार नहीं होता है। इन्हीं की रोजी रोटी छीनी जाती है। जब हम लोगों के ऊपर टैक्स लगा 2008 में, तब हम लोगों ने अपना माँ गंगा निषाद राज समिति बनाया। तो हम लोग यहाँ पर जब 100 रुपये टैक्स लग रहा था एक नाव पे खड़ा करने का, चाहे आप सवारी ले जाओ चाहे न ले जाओ बनारस की धरती से, और जो 100 रुपये टैक्स नहीं देगा, बहन जी की सरकार उस समय चल रही थी, तो उसका नाव 10,000 जुर्माना लगेगा, उसके नाव ऊपर खींच दी जाएगी। तो उस समय भाजपा भी हम लोग के साथ नहीं आया, न सपा आया, न कांग्रेस आया, कोई भी नहीं आया। तो हम लोग 5 दिन अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे यहीं 2008 में। Men like Vinod embody a very fascinating aspect of grassroots democracy, of community leaders who gain great prominence around elections. They claim to reflect the sentiments of their community. In turn, each political party seeks to bring them into their fold. पहले जो भाजपा के लोग आते थे घाट किनारे पे मल्लाहों को, रामचंद्र जी का और भगवान निषाद राज जी का, आपके जो भगवान लगते हैं, उनका बहुत ही पुराना रिश्ता है। इसलिए ये राम के नाम का पार्टी है। भाजपा भारतीय जनता पार्टी कहा जाता है, जिसको राम के मंदिर बनवाने के लिए, हिंदुओं को मंदिर बनवाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए पूरे भारतवर्ष में काफ़ी लोग उसमें थे भाजपा में। हाँ, और हाँ, निषाद जाति में जो लोधी जाने जाते थे, यहाँ के मुख्यमंत्री भी थे, तो उनके वजह से पूर्व में जो मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह, वो लोध जात के, नाविक जात के थे। As Vinod goes into the voting history of his community, it's clear that the Ram Janmabhoomi politics of the early 90s had a huge impact on the Nishads. Then the BJP drew great political mileage by framing the community as descendants of Nishad Raj, who helped Ram across the river. This gave the Nishads a prominent Hindu identity, allowing them to fight the stigma of being an extremely backward caste. The presence of Kalyan Singh, a Lodh, a man from their own community, also helped consolidate the vote for the BJP. That was 20 years ago. भाजपा के संग में जो राम मंदिर के लेकर के वहाँ पर अयोध्या जी में झगड़ा हुआ था, वहाँ तक हम लोग गए थे, बल्कि हम लोग बंद भी हो गए जेल में। मगर ऐसा चक्कर लोग चला रहे हैं कि आपस में जनता को झुरा दे रहे
अपने जो तो मजा ले रहे हैं। सब क्या राजनीतिक, इसी को कहा जाता है कि राजनीतिक। आज़ादी के समय Ganga Ram Nishad has seen many elections and is typical in his disillusionment with political parties. After the BJP lost ground in Uttar Pradesh, Banaras may still have been a BJP bastion, but the Nishad vote here fragmented between the BSP and the Samajwadi Party. Because they saw कि उनका aspirations पूरा नहीं हो रहा था, तो in that condition they moved towards Samajwadi Party or BSP also. Samajwadi Party because of Phoolan Devi and फूलन देवी के मिथ्स का फूलन देवी का आना, समाजवादी पार्टी से जुड़ना, और फूलन देवी का जो हीरोइज्म है वो बहुत ज़्यादा निषाद कम्युनिटी में है। और फूलन देवी ने भी निषादों को एक वोट बैंक के रूप में शी ट्राइड टू मोबिलाइज इन द फेवर ऑफ समाजवादी पार्टी। The resonance of Phoolan Devi and the importance of caste identity symbolism continues into these elections, which has once again become the story of a fierce battle for the Nishad vote. The Samajwadi Party has already promised a statue of Phoolan Devi near the Nishad Raj Ghat in Banaras. Both the SP and the Bahujan Samaj Party have long been promising the Nishads scheduled caste status. As an extremely backward caste, the Nishads have felt that dominant OBCs cornered their reservation benefits. The BJP too has worked hard on this vote bank. Uma Bharti, a Lodh from the wider Nishad community, has for the last 2 years done several Jal Yatras or river journeys, evoking issues of the Ganga close to the heart of the riverbank community. For greater perspective, we travel to Badi Sarai Mohana, a village in Banaras district in the Chandoli parliamentary constituency, a typical fishing village dominated by the Nishad community. मेरा नाम आनंद है और मैं पीवी समाचार में एक्टिविस्ट हूँ। और जो यूपी के बनारस ज़िला है, बनारस ज़िला में पूरा बेल्ट ही है मछुआरों का। रात में तो मछली मारते थे, लेकिन दिन में इन लोग बनारसी साड़ी का काम करते थे। बनारसी साड़ी का धंधा भी ख़त्म हो गया। अगर जो वैश्वीकरण का एक दौर चला उस दौर में पूरा इनका धंधा मंदा हो गया। फिर इसके बाद जो मछली मारने का जो काम था वो भी इनके ऊपर से जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो बैन आया कि कछुआ सेंचुरी लगा हुआ है गंगा जी में, गंगा में कोई मछली नहीं मार सकता, तो उससे भी इनको वंचित कर दिया गया। As Anand takes us around the village, he identifies the serious issues that face his community. Local issues abound, but when the villagers speak of voting, caste and identity politics take center stage. यहाँ बनारस में या केंद्र में पूरे चर्चित हैं मोदी। केंद्र में बदलाव चाहे सब बहुत हम लोग इलाके में देखे हैं ना, सब लोग यही चाहता है कि केंद्र में बदलाव लाना चाहिए। महिलाओं के लिए अभी तक किसने सबसे ज्यादा किया है? महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा सपा दोनों किए। 100% सपा ने किया। आप कह रहे हैं सपा बसपा दोनों, आप कह रहे हैं सपा, केवल सपा। क्या किया उन्होंने? सबसे अच्छा खुशी का बात तो ये था कि मुलायम सिंह यादव ने मल्लाहों के लिए जो राज निषाद राज है उनके लिए एक छुट्टी सरकारी कर दिया था। लेकिन छुट्टी से आप लोगों की तरक्की कहाँ होगी? नहीं, जैसे तरक्की नहीं हुआ। एक चीज होता है कि जैसे हमको आज सरकारी छुट्टी हो गई, तो ये तो जो जनता के बीच में ये तो हो जाएगा ये क्या है, किस लिए छुट्टी हो रहा है, तो ये तो पता लगेगा कि मल्लाहों के लिए निषाद जयंती मनाया जा रहा है। मल्लाहों का पहचान हो गया जो है। तो ये फूलन देवी की क्या बात है? फूलन देवी की जो है तो ऐसे जैसे पहले वो यहाँ जेल से जो है तो मुलायम उस समय क्या थे, मुख्यमंत्री थे। उसके बाद जो है तो निकाल के उनको लोक सभा के लिए टिकट दिए, सांसद बनवाए। कैसे उनको जो है तो मारा गया, मारने के बाद उनको सीबीआई जांच नहीं करवाई। मुलायम सीबीआई जांच लगवा दिए होते तो आज सपा के लिए जो है तो एक मल्लाह का जो है तो बच्चा जो है तो खड़ा होने के लिए तैयार। मायावती के साथ कोई शासन है, मायावती के साथ शासन कोई यूपी में नहीं किया। उनके सरकार में कोई गुंडा नहीं, कोई बदमाशी नहीं, कोई छिनैती नहीं। रिकॉर्ड देख लीजिए। If there are strong voices of support for the Samajwadi Party, the BSP too has its own base, mainly as it has developed links with strong community leaders. साथ समाज के लोग इस समय काफ़ी तेजी से जुड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की ओर, क्योंकि बहन मायावती जी जो आज 17 अनुसूचित जनजाति में डालने की बात है, जिसमें निषाद समाज शिक्षा में, राजनीति में
और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं उनको तो जब सरकार में भागीदारी मिलेगी तभी तो ही उनका विकास होगा। इस बार चुनाव में निषाद समाज के लोग जो है वोट उसी को करेंगे जो स्थानीय पार्लियामेंट के लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी की ओर लोगों का ज़्यादा निषाद, बिंद, कश्यप, माझी, केवट, धीवर सारे जगहों पर हम लोग काफ़ी संख्या में वोट देने का काम कर रहे हैं। आप जब यहाँ से मिर्ज़ापुर में भी जाइएगा तो वहाँ भी हमारी बसपा की वो लड़ रही हैं, का नाम उनका सुभद्रा बिंद, वो भी जीत रही हैं। तो काफ़ी मल्लाह समाज के लोग बहन जी को लाइक करते हैं। हम गर्व रखते हैं निषाद समाज के बेटे को कम से कम राजनीति से जोड़ा तो जा रहा है। If at first the voices seem to reflect a fragmented voter's psyche, when it actually comes to talk of casting their vote, there's an undeniable alacrity with which Narendra Modi's name comes up as a popular choice for the Prime Minister's post. मोदी का काम ठीक है, उनको तो हम लोग जिताएंगे। केंद्र सरकार 5 साल जब से नहीं बीतेगा। समाजवादी पार्टी का पहने हुए हैं। हाँ, तो मैं इन्हीं दल का हूँ। वोट तो देंगे ही। किसको? मोदी को केंद्र सरकार बनाना, क्यों भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। वो अच्छे हैं। गुजरात में सुने कि 14-15 साल वो राज्य संभाले हुए हैं।